پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا اسلام. Did you try talking to the government to protect the Supreme Court? Because evidently, Yes. Sajjad Ali Shah wrote you a letter saying that he needs protection at the Supreme Court. Yes, and I sent that letter immediately to the government saying that you should give him protection. Not only that, Or the government? Nothing. nothing. They did nothing. They planned and executed the storming of the Supreme Court. Nawaz Sharif and his brother Shahbaz Sharif, they were both involved. There were others involved, and I don't know who all were there. But these two were definitely involved. They got their thugs and ruffians from Gujranwala and Lahore and other places. And they stopped it. And there were several MNAs But and you don't you think you senators could have talked to Jahangir Karamat? Maybe gotten him on your side? Jahangir Karamat, Explain the situation yeah, to him? But Jahangir Karamat was very much there. He was in the know of it. He was also informed about it. And he also passed the buck on to the government. Mr. Laghari, you're telling me that the President of Pakistan cannot deploy a few troops outside the Supreme Court fearing its storming? No, the president cannot without the approval of the government. Unless the president dissolves the assembly and throws it out. All right. Only then can he do that, not before that. All right, moving on. کیونکہ خان صاحب کو پتا ہے کہ الیکشن میں تو جیتنا نہیں ہے. وہ تو اس زمانے میں بھی جب مشرف پیک پہ تھا تو ان کی وہ اپنا جوتیاں چاٹتے تھے. وہ یہودی بیوٹی کو لے کے جا کے وزیر اعظم بننے کے چکر میں تھے. کراچی یونیورسٹی میں گئے اور وہاں گندے انڈے کھائے انہوں نے ریفرینڈم کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے. آپ انفارچونیٹلی آپ نے کوئی سبق نہیں سیکھا. آپ نے کوئی اپنا میک اپ نہیں مائنڈ کیا. آپ آج بھی جھوٹے ہیں. آپ آج بھی جاہل ہیں. اب آج بھی جواریے ہیں. اب آج بھی بزدل ہیں. آج آپ بھی ٹیکس چور ہیں. اور آج آپ بھی فطرے کا سب سے بڑی وجہ ہے پاکستان. آخر کیا وجہ ہے کہ ہر کاروبار کا رخ حکمران خاندان کی طرف ہی ہوتا ہے؟ دودھ ہو یا پولٹری فیڈز ہو یا پھر لوہے کا بزنس، کاروبار کوئی بھی ہو، محور صرف حکمران خاندان ہی ہے. اس کی تازہ مثال ہے 132 میگا واٹ چنیوٹ پاور پلانٹ. جی ہاں، اس پاور پلانٹ کو جنگ روڈ پر واقع رمضان شوگر ملز میں لگایا گیا ہے. دکھاوے کے لیے اس پاور پلانٹ اور رمضان شوگر ملز میں برائے نام ایک چھوٹی سی دیوار بھی ہے. پلانٹ کو چلانے کے لیے حکومت سے بگاس اور فرنس آئل کی منظوری لے لی گئی، لیکن یہ پلانٹ صرف شوگر ملز کے فضلے یعنی بگاس پر ہی چلایا جا رہا ہے. یعنی آم کے آم گٹھلیوں کے دام. سستی بجلی پیدا کر کے حکومت سے فرنس آئل کے استعمال کے نام پر 5 سے 7 روپے فی یونٹ ریبیٹ بھی وصول کیا جائے گا. چنیوٹ پاور پلانٹ کیسے کام کیا گیا، اس کی علیحدہ کہانی ہے. وہ کچھ یوں ہے کہ حکمران خاندان کے چشم و چراغ سلمان شہباز نے بھارت کے کئی چکر لگائے. چین سے دوستی کے دعوے دار حکمرانوں نے آدھی مشینری چین اور آدھی بھارت سے منگوائی. یہی نہیں، پاور پلانٹ کو چلانے کے لیے 37 بھارتی کنسلٹنٹس بھی اسی پلانٹ میں موجود ہیں جنہیں کسی سے ملنے کی اجازت نہیں. انکوائری کے لیے جانے والی سیکیورٹی ٹیموں سے بھی ان کی ملاقات نہیں ہونے دی گئی. وہ بھارت جسے پاکستان ایک آنکھ نہیں باتا، اس کے 37 انجینئرز پاکستان میں کیوں موجود ہیں؟ کہیں وہ پاکستان مخالف سرگرمیوں میں تو ملوث نہیں؟ ان تمام حقائق سے پردہ اٹھانا یقیناً ملکی ایجنسیوں کا کام ہے. اہم اداروں کو چاہیے کہ وہ حکمران خاندان کی چھایا چھتر میں بھارتی مفادات کے پروان چڑھنے کی تحقیقات کریں. وہ یہ بھی معلوم کریں کہ حکمران خاندان کے آخر بھارت کے ساتھ کیا معاملات ہیں جن کے لیے بھارت کے اتنے چکر لگائے جاتے ہیں، اور بھارتیوں کو جواباً کیا دیا جا رہا ہے. وہ کچھ تو وصول کر رہے ہوں گے. وہ بچیاں کاؤنٹنگ کرانا چاہ رہی تھیں، ان کو جو ہے کہا نہیں جی اندر، اور اندر کیمرہ بند کر کے آپ سن لیں. آپ ڈالیں کیمرہ پلیز. جن کی بچوں کے ساتھ ہوا آپ سنیں کیا ہوا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب کاؤنٹنگ کا ٹائم ہوا ہے نا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے جو ہے نا کہ جو کاؤنٹنگ ہم نے کمرے میں کروانی ہے. واٹ از ڈفرنٹ اباؤٹ نون لیگ؟ ایک عزت ہے ایک عورت کو، وہ بہت امپورٹنٹ ہے. نون والے جو ہے نا وہ دیواریں پھلانگ کے اندر آ لی ہیں، باقی وہ لے کے تو وہ بھاگ گئے. اس کے بعد انہوں نے وہ جو
पुलिस वाले थे उन्होंने भी मारा बच्चियों को, और ये नून वाले उन्होंने भी मारा, घूंसे मारे, मुक्के मारे, उनकी शलवारें उतारी इन्होंने गंदों ने। बस now है, बट ये बेहुरमती हम याद रखें कि हम असेंबली में भी बात करेंगे, मोबाइल भी बात करेंगे। व्हाट इज डिफरेंट अबाउट नून लीग? एक इज्जत है एक औरत को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ये बेहुरमती, एक इज्जत है एक औरत को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। औरतों को सामने लाना और जिस तरह की गुफ्तगू उस खातून से करवाई गई है कि किसी खातून के साथ ये किस तरह डिफाइन करेंगे कि वो दीवारें फलांग के आने वाले लोग कौन थे? लगता है ना कौन थे? अब एक रिपोर्ट सुन लें नाजरीन, ये आपके लिए इसलिए बनाई गई है कि हमारे मुल्क में कितनी ऐसी हज़ारों लाखों मरियम नवाज हैं जो अदालतों किसी तरह चक्कर लगाते हैं और कईयों के साथ तो महरम भी नहीं होता। ज़रा सुन लें रिपोर्ट। मरियम नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की बेटी नहीं है, वो मेरी भी बेटी है, वो कौम की भी बेटी है। मरियम कौम की बेटी सर तस्लीम खम, आपकी बात सराखों पर कि किसे मिजाल कि आपकी कही गई बात क्या कि अपनी बात पेश करे और बात यहाँ तक पहुँचे। वो यहूदी ब्यूटी को लेकर जाके वज़ीर आज़म बनने के चक्कर में थे। आप आज भी झूठे हैं, आप आज भी जाहिल हैं, अब आज भी चवालिये हैं, अब आज भी बुज़दिल हैं। काश इसहाक डार साहब आपको तब भी वही तकलीफ महसूस होती जब मॉडल टाउन में सरेआम खवातीन को तशद्दुद का निशाना बनाते बनाते मौत के घाट उतार दिया गया और मुतअद्दिद साल गुजर जाने के बावजूद मुल्ज़िम तलाशी गुमशुदा हैं या आपको कभी उनकी तलाशी नहीं थी, क्योंकि वो कौम की बेटियां तो थीं मगर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की नहीं। खास तो ये भी थी कि आपके सीने में आफिया सदीकी का दर्द उभरता कि कौम की बेटी तो वो भी थी। उम्मीद तो ये भी थी इसहाक डार साहब के कौम की मुतअद्दिद बेटियां जब पुलिस की सफाकित की भेंट चढ़ती हैं तो आप तड़प उठते, बिलबिला उठते। उम्मीद तो ये भी थी जब अस्पताल के गर्म फर्श पर लेटाकर कौम की ही किसी बेटी का इलाज किया जा रहा था, आप बेताब होते, तब भी ऐसे ही जज्बाती तकरीर कर डालते। इंसाफ के लिए दर बदर ठोकर खाने वाली मेरी बहनों और कौम की बेटियों का दर्द भी आप यूं ही महसूस करते जैसे आपने मेरी बहन और कौम की बेटी मरियम का महसूस किया। काश मेरा ये काश न रहे और आप ये दर्द महसूस कर सकें और फरेब ज़ात से निकलकर जहाँ की वो सानहें देखें जो आप समेत तमाम अरबाब इख्तियार की तवज्जो के मुंतज़िर थे, हैं और न जाने कब तक रहेंगे। इस पर मैं क्या सवाल करूँ मियां साहब, कौम की कई ऐसी बेटियां हैं जिनके साथ बड़ा कुछ हो जाता है, मगर मैं ये नहीं कहना चाहता कि लोग जो बातें इसके मुतल्लक करते हैं कि इसकी दो छोटी बहनें जो हैं, मगर मैं नहीं ये कहना चाहता ना मेरे लिए ये चीज़ें मुनासिब हैं कि मेरे लिए या किसी भी रुकने असेंबली के लिए कि उनका इमरान खान से क्या तल्लक है, रिश्ता है, क्यों आना जाना है, ये चीज़ें मैं नहीं कहना चाहता। अच्छी तरह से याद है और यकीनन पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के लिए वो दिलखराश सोच थी। वो नकली शहीद और लाड़काना में है जिसने पाकिस्तान को कुर्बान कर दिया अपने इख्तियार पर, जिसको बेनज़ीर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद कहती है। ये लोग, ये पाकिस्तान के गद्दार जिसको वो शहीद कहती है अपने बाप को, उसने पाकिस्तान के दो टुकड़े किए हुए, ये तो न जाने कहां से आई है और इसको किसने लाके बैठा दिया है। असेंबली में जब हमने बात की तो मैंने कहा तुमने ये बात कही थी बेनज़ीर भुट्टो कि तुमने हिंदुस्तान की मदद की थी, हिंदुस्तान को टुकड़े टुकड़े होने से बचाने के लिए, और सिखों के खिलाफ तुमने उनकी मदद की थी। कहती हाँ मैंने मदद की थी और मैंने जो कहा है मैंने सच कहा और मैं आज भी कहती हूँ मैंने मदद की थी। ये पाकिस्तान का सौदा करना चाहते हैं, लानत है इनके ऊपर, खुदा की लानत है और ये अल्लाह ताला के कहर की सबसे बड़ी निशानी है। चलिए बीबी का याद आपने करा दी, आलती मालती पालती डाल के एक बाजू पे बच्चा, उनके एक बच्चा होता था, दूसरे पे बेटी होती थी, बिलावल और बख्तावर। जब हम जेल में जा रहे होते थे और एक दफ़ा तो मैं दाखिल हुआ जेल में, मैं उससे ज़रा देर से पहुंचा, जहाज़ मेरा लाहौर से देर से पहुंच गया,
ये पहले पहुंच गई हुई थी। तो साबिक वजीर आज़म की बेटी, साबिक वजीर आज़म की पोती एक ईंटों के ढेर पे गर्मी में डांडी जेल में बैठी हुई थी और इंतज़ार कर रही थी कि मुझे उनकी गाड़ी कब तक लेके पहुंचेगी। और जब मैंने गुस्सा किया सुपरिटेंडेंट पे तो बीबी ने खुद मुझे रोक दिया। बीबी शहीद ने कहा कि एतजाज प्लीज़ इनसे मत लड़ो, क्योंकि जितना आप इनसे लड़ोगे उतना ये समझेंगे हमें तकलीफ हो रही है। और ये सब कुछ नवाज शरीफ साहब कर रहे थे। ये नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट मेड इन इंग्लैंड नहीं है, ये तो न जाने कहां से आई है और इसको किसने लाके बैठा दिया है। आज भाई खामोश भाई खामोश। और मेरे भाई और आज पूरे पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी कर रही है ये औरत। और मैं आपको बता देता हूं, सुन लो मेरी बात। असेंबली में जब हमने बात की तो मैंने कहा तुमने ये बात कही थी बेनजीर भुट्टो कि तुमने हिंदुस्तान की मदद की थी, हिंदुस्तान को टुकड़े टुकड़े होने से बचाने के लिए, और सिखों के खिलाफ तुमने उनकी मदद की थी। कहती हाँ मैंने मदद की थी और मैंने जो कहा मैंने सच कहा और मैं आज भी कहती हूँ मैंने मदद की थी। मैंने कहा मेरे दोस्तों मुझे बताओ क्या नवाज शरीफ अब इसके ऊपर खामोश रहे? आपसे येलो कैप छीन ली है, उसने आपसे आपका रोजगार भी छीन लिया है और उसको मौका मिला तो वो पाकिस्तानी कौम को भूखा मार देगी। हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। और जो के बेनजीर भुट्टो और फारूक लगारी 11 सितंबर तक इस्तीफा दे, ये मुतालबा आपका भी मुतालबा है या नहीं है? ये पूरी कौम का की सदारत के मनसब पे ऊपर बैठा हुआ है। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा बददियानत इंसान है और अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाले लोग हैं। अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाले लोग शहीद जियाउल हक का मुकाबला करेंगे। ये पाकिस्तान के गद्दार जिसको वो शहीद कहती है अपने बाप को, उसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए हुए, मुझे बताओ किसी खाते में नहीं आया था। और जनरल जियाउल हक शहीद सुरखरू होके रहेगा, एजाजुल हक सुरखरू होके रहेगा। इंशाअल्लाह फिक्र मत करो, हम अल्लाह के फजल से आपसे 4 कदम आगे चलेंगे। आप हमारे बस पीछे पीछे चलो तो काम बन जाएगा। कातिल है सभी अपने यारों, कातिल है सभी अपने यारों। विरसे में हमें ये गम है मिला, विरसे में हमें ये गम है मिला। इस गम को नया क्या लिखना, क्या लिखना। जंग का तरीका सिखाओ, लड़ना कैसे है। जंग का तरीका बताओ, कश्मीर कैसे हासिल करना है। वो तरीका बताओ कि बंगाल कैसे देना है। हमें ये तरीका बताओ, असलहा कैसे फेंकना है। तुम हमें सियासत बतलाते हो, तुम्हारा मैदान सियासत नहीं है। अपने हुदूद में रहो, इसराइल की नौकरी न किया करो, इसराइल के वजीफों पर पलने वाले जर्नलों, रिटायर्ड जर्नलों, अपने हुदूद में रहो। Pakistan has taken action to try civilians by its military courts and made no progress to take forward trials in cases of heinous terror attacks like the one in Mumbai
on 26 November by which 166 persons from 15 countries were killed by Pakistani terrorists. Prominent Pakistani newspaper Dawn carried an interview of their former Prime Minister, Mr. Nawaz Sharif, in which he was quoted as having made the admission of Pakistan's complicity in Mumbai terror attacks, stating, "Militant organizations are active. Call them non-state actors. Should we allow them to cross the border and kill 150 people in Mumbai? Explain it to me. Why can't we complete that trial?" Jadav's trial was completed in 6 months, 4 months. जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, आपने हमारी अच्छी भली चलती हुकूमत को रुखसत करवाया, जजों से जोर जबरदस्ती के फैसले आपने लिखवाए। जनरल बाजवा साहब, आपको 2018 इलेक्शन में अवाम के मैंडेट की चोरी का हिसाब देना है। नवाज शरीफ ने ये जरूर किया कि उसने किरदारों और इदारों के दरमियान एक वाज़ेह लकीर खींच दी है। एक या दो अफराद इदारा नहीं हुआ करते, एक या दो अफराद इदारों की बदनामी का बायस बना करते हैं। तुम हमें बताते हो, अपने हुदूद में रहो, इसराइल की नौकरी न किया करो, इसराइल के वजीफों पर पढ़ने वाले जर्नलों अपने हुदूद में रहो। बड़े बड़े रैंकों वालों से भी अपने आप को मुहतरम समझता हूँ, तो सीधे हो जाओ, और अगर बिगड़ोगे तो फिर अगर हम बिगड़ गए तो अफगानिस्तान में अमेरिका का क्या हासिल हुआ, खुदा की कसम यहाँ तुम्हारा वही हासिल होगा। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए, पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे। के लिए ये पूरी इंप्यूनिटी के साथ अपना सीना चौड़ा करके डिफेंस बजट को क्लेम कर रहे हैं और मांग रहे हैं कौम से। कौम की हड्डियों से गोश्त तक जो है इन्होंने निचोड़ लिया है। ने कहा था वैसे आपको कि आप ये 1.5 साल की हुकूमत ले लें। नहीं, देखिए, हम सिर्फ मोशत पे आपका फोकस है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन पाकिस्तान के जो सियासी मामलात थे और जिस तरफ इस साल के आखिर में एक बड़ी तब्दीली आनी थी, उसमें तो ये नजर आ रहा था कि इमरान खान का जो गठजोड़ है ये तो अगले 15 साल रहेगा अगर इस तरह हालात रहे। और जिस तरह के उनके प्रोग्राम थे, हम सब ने डिस्क्वालीफाई होना था इस साल के आखिर में, तमाम जो अपोजिशन की लीडरशिप है। अच्छा, उनका तो ख्याल था कि मैं सफाया कर दूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो ये आपका खदशा है, मालूमात है? जी, हमारी सीरियस मालूमात है। आपके ख्याल में जो आप ये लोगों को भूल जाता है, लेकिन कुछ माह पहले जो कहा कि जी हम नैब के कुछ 100 जज और हायर कर रहे हैं और हम सारे केसों को एक्सपेडाइट करेंगे, तो उस मैस लेवल के ऊपर मैस लेवल पे डिस्क्वालिफिकेशन होनी थी। बिगिनिंग शहबाज शरीफ डाउनवर्ड, शाहिद खान अब्बासी, हसन इकबाल और ऑल ऑफ अस, सिर्फ मुस्लिम लीग नून की नहीं। आपके ख्याल में जो कोalition बनी है वो इसी वजह से बनी है कि इमरान खान साहब के तो फाशिस्ट प्लान्स थे ना इस मुल्क के ऊपर हमला करने के, तो लिहाजा ये आज मुश्किल जरूर है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान का मतलब क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या।